Okay, as you know, in our last session, we have started the chapter of the communication of offer, acceptance, and revocation. Okay, we have discussed this particular part in general language. Okay, when a communication of offer will be said to be completed, when communication of acceptance will be said to be completed. Huh? That point we have discussed in our last lecture. As well, we have discussed that the offer can be revoked or acceptance can be revoked, but the limitation of time up to which we can revoke our offer, or up to the time we can revoke our acceptance, that point also we have discussed in our yesterday's lecture. Now we are going to deal with the same point from the module language. कल जो हमने डिस्कस किया था उसको हम लोग क्या कर रहे हैं अभी मॉड्यूल लैंग्वेज में डिस्कस करने वाले हैं. वहां पे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस, हाँ, एंड इन अ वे revocation of the communication of offer and acceptance. That point we are going to discuss right now. Okay. Communication of the offer and acceptance is the point we are starting. Communication of offer and acceptance is the point. Okay. The importance of the offer and acceptance in giving effect to a valid contract was explained in the previous paragraph. Like you are aware, कि हमने already discussed किया, one of the essential element of a valid offer was communication of offer must be made. One of the important essential element of valid acceptance was that communication of acceptance should be made. One of the important common requirement of both offer and acceptance, दोनों के लिए इन द इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज बहुत जरूरी है. ओके, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर मैं आपको ऑफर ही नहीं बताती हूँ तो आपको पता कैसे चलेगा कि मुझे क्या आपके साथ ट्रांजैक्शन करना है, और आप मुझे आपका एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट ही नहीं करते तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको मेरे साथ वो ट्रांजैक्शन करना है, राइट? सो इफेक्टिव एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन प्रिवेंट द अवॉइडेबल रिवोकेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टीज. तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर होगा तो पार्टीज के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग वहां पे नहीं होगा. ठीक है. When the contracting parties are face to face, there is no problem of the communication because there is an instantaneous communication of offer and acceptance. मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जब पार्टीज फेस टू फेस है तो ये प्रॉब्लम ही अराइज नहीं होगा, क्योंकि सिंपल है. मैं आपको मेरे सामने बैठे हो तो पूछूंगी कि वुड यू लाइक टू मेक अ डील विथ मी एंड यू आर सेइंग यस आई एम रेडी फॉर दिस पर्टिकुलर डील. मींस व्हेन पार्टीज आर फेस टू फेस there will be no problem of the communication, because there is an instantaneous communication of the offer and acceptance. In such a case, the question of revocation does not arise since the offer and acceptance are made instantly. Offer acceptance कैसे किया जाएगा बोलो? Instantly किया जाएगा. So therefore there will be no problem of the communication. The difficulty arises when the contracting parties are at the distance from one another and they utilize the service of the post or telephone or email or internet. तब प्रॉब्लम होगा कि एग्जैक्टली वो मोमेंट कौन सा है जब ऑफर कम्युनिकेट हो गई और एग्जैक्टली वो मोमेंट कौन सा है जब कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया. इन सच केसेस इट इज वेरी रिलेवेंट फॉर अस टू नो द एग्जैक्ट टाइम when the offer or acceptance is made or it is becoming complete. Okay, now इसके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया है to the time factor of the communication of the offer and acceptance. The Indian Contract Act gives a lot of importance to the time element in deciding when the offer and acceptance is complete. Okay, offer acceptance कब complete होगा इसके time factor को Indian Contract Act ने भी क्या किया, बहुत importance दिया हुआ है. Okay, now which are the parameters to remember here on? आपको क्या करना है, देखो directly आपको यहाँ पे आना है. One of the important requirement of both offer and acceptance is their effective communication. ये line underline करके रखो. One of the important common requirement of both offer and acceptance is their effective communication. Then नीचे आ जाओ. कहाँ पे marking करना देखो. When the contracting parties are face to face, there is no problem of communication because there is an instantaneous communication of the offer and acceptance. Okay, इतना ही mark करो वहाँ पे. Then again paragraph करके आ जाओ. The difficulty arises when the contracting parties are distance from one another and they utilize the service of the post office or telephone or email. यहाँ पे problem क्या हो जाता है, arise हो जाता है, और वो problem हम लोग अब one by one क्या करेंगे, solve करेंगे. Okay, so ऊपर से आपने कौन-कौन से line mark किए ध्यान में आ गया? One important common requirement of offer and acceptance is effective communication. ठीक है. Then when contracting parties are face to face, there is no problem of communication because instantaneous communication of offer and acceptance will be there. Then paragraph difficulty arises
when contracting parties are at the distance from one another and they utilize the service of the post or telephone or email and directly फिर हमें क्या करना है, point पे arise होना है वहां पे. In terms of section 4, अब section 4 क्या बताता है, देखो अभी मैंने आपको कल भी बताया था जब हमने हमारे इन जनरल लैंग्वेज में रीड आउट किया था वहां पे, हाँ, कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. हाँ, वो पैरेलल रूल हमें याद रखना है. जिसको ऑफर करनी है उसके नॉलेज में वो ऑफर आ गई तो वहां पे ऑफर क्या हो गई बोलो, कम्युनिकेट हो गई. हाँ, communication of offer कब complete होगा बोलो, the communication of offer is said to be completed when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. When I want to ask Mr. Amit, would you like to purchase my motorbike for rupees 50,000? When that offer comes to the knowledge of the Amit, okay, the offer will be said to be communicated. Offer क्या हो गई बोलो, वहां पे communicate हो गई. हाँ, let's check out, okay, what the law says. Now, as per section 4, ये तीनों रूल है ना सेक्शन 4 में दिए गए, याद रखना. हाँ, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर सेक्शन 4 पैराग्राफ 1, communication of acceptance section 4 paragraph 2, and communication of or revocation of either offer or acceptance section 4 paragraph number 3. तो तीनों रूल जो है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन के, वो कौन से सेक्शन में दिए गए बोलो, सेक्शन नंबर 4 में दिए गए. हाँ, लेट्स चेक आउट. देखो व्हाट द लॉ सेज अबाउट कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, इसके बारे में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ओके, इन टर्म्स ऑफ द सेक्शन 4 दैट सेज, हाँ, और सेक्शन 4 सेज communication of offer is completed when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. जिस भी किसी को अपने ऑफर की है उसके वो नॉलेज में आ गई, ऑफर क्या हो गई बोलो, वहां पे कम्युनिकेट हो गई. हाँ, नाउ एग्जांपल, when A makes a proposal to the B by post to sell his house for rupees 5 lakh. A B को प्रपोज कर रहा है उसका घर बेचने के लिए कितने रुपए में, 5 लाख रुपए में. And if the letter containing the offer is posted on the 10th of March. लेटर ऑफ ऑफर कब सेंड किया, देखो 10th of March को. and if the letter of offer reaches to the B on the 12th of March, लेटर ऑफ ऑफर B को कब मिला, 12th of March को, तो ऑफर कब कंप्लीट हो गई. देखो लॉ क्या कहता, when the offer comes to the knowledge of the person to whom it is made, the offer is said to be communicated, right. तो कब वो B के नॉलेज में आ गया लेटर ऑफ ऑफर, 12th of March को, राइट. सो एक्सेप्ट कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हो गया बोलो, 12th of March को, right. Okay, when A makes a proposal to the B by post to sell his house for rupees 5 lakh, and if the letter containing the offer is posted on the कब देखो 10th of March को, and if that letter reaches to the B on the 12th of March, the offer is said to be communicated on the 12th of March. क्यों, क्योंकि 12th of March को offer comes within the knowledge of the B. 12th of March को ऑफर किसको रीच हो गई, लेटर ऑफ ऑफर किसको रीच हो गया बोलो, बी को. ओके, नाउ thus it can be sum of that the proposal is made by the post, it is communication will be completed when the letter containing the proposal reaches to the person to whom it is made. और अगर वही पोस्ट से भेजा गया तो लेटर ऑफ ऑफर जब उसको मिल गया, ऑफर विल बी सेड टू बी कम्युनिकेटेड. ऑफर क्या हो गई बोलो, वहां पे कम्युनिकेट हो गई. हाँ, तो कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर वाला जो पॉइंट है वो हमें कैसे याद रखना है. देखो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर आपका अंडरलाइन होगा मटेरियल के अंदर, देन सेक्शन 4 आपका अंडरलाइन होगा, एंड देन आपको लॉ अंडरलाइन करना है. अब लॉ में आप क्या करोगे पता है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर लिख के आप स्मॉल ए एंड स्मॉल बी डालो मॉड्यूल में. हाँ, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी कैसे डालोगे, देखो यहाँ पे आप करो स्मॉल ए, यहाँ पे आप क्या करो, यू जस्ट पुट आउट अ स्मॉल ए हियर, एंड स्मॉल बी आपको कहाँ पे करना है, देखो यहाँ पे स्मॉल बी. हाँ, और आपका आंसर कैसे होगा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर का, देखो द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज अ कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom it is made. जैसे कि ईमेल सर्च किया तो उसको ईमेल सेंड हो गया, मतलब उसको क्या हो गया बोलो, वो ऑफर उसके नॉलेज में आ गई, तो ऑफर विल बी सेड टू बी कम्युनिकेटेड. हाँ, तो कम्युनिकेशन ऑफर इज अ कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom it is made. यहाँ पे आप क्या करना, बी करना, ए करना सॉरी. हाँ, एंड बी क्या करना, देखो यहाँ पे, यहाँ से आपको अंडरलाइन करना है, बी डालना है इसको. when the proposal is made by the post, और अगर वही ऑफर पोस्ट से की है तो its communication will complete when the letter containing the proposal reaches to the person to whom it is made. जिसको आपको वो लेटर डालना था उसको मिल गया,
मतलब आपका कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर क्या हो गया, वहां पे कंप्लीट हो गया। तो दो रूल है, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom it is made, and number 2 रूल क्या बोले वहां पे, when it is sent by the post, when the letter of offer reaches to that particular person, offer is said to be communicated। ओके, ए एंड बी ऐसे दो रूल आपको क्या करने हैं, अंडरलाइन करने हैं। हाँ, ये 10 इट कैन बी समन्ड अप, इसको भूल जाओ। ए करो, communication of offer is complete when it come to the knowledge of the person to whom it is made, and B karo, when the proposal is made by the post, its communication will complete when the letter containing the proposal reaches to the person whom it is made, and then आपका point क्या जाएगा बोला, example। हाँ, example फिर याद रखना कि when A makes a proposal to the B to sell his house worth ₹5 lakh with a letter posted on 10th March, letter reaches on 12th March, communication of offer will be said to be completed on the 12th of March। सिंपल है वहां पे। हाँ, देखो आगे क्या गया, mere receiving of a letter is not sufficient, it must receive or read the message containing the letter। हाँ, क्या है वहां पे दिया रूल, देखो कि खाली लेटर का रीच होना जरूरी नहीं है, हाँ, या इनफ नहीं है, वो जो मैसेज है वो मैसेज क्या होना जरूरी है, ऑफरी रीड करना या वो मैसेज ऑफरी तक पहुंचना भी वहां पे जरूरी है। हाँ, देखो he receives the letter on the 12th of March but reads on the 15th of March। हाँ, लेटर कब रिसीव किया उसने 12 मार्च को, बट वो लेटर उसने रीड कब किया, देखो 15 मार्च को। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर विल बी सेड टू बी कंप्लीटेड ऑन द 15th of March, बट नॉट ऑन द 12th March। 12th March को नहीं होगा, वो कब होगा, 15th of March। तो ओनली इनफ नहीं है कि आपको लेटर मिल जाए, बट इट इज इम्पोर्टेंट इज दैट ही शुड रीड दैट पर्टिकुलर लेटर, it comes to the knowledge of the person to whom it is made। okay, तो इसकी वजह से क्या जरूरी बोलो वहां पे, 15th of March will be the date on communication of offer will be said to be completed। हाँ, तो यहाँ पे हमारा कौन सा वाला पॉइंट खत्म हो जाता है, देखो कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर जो पॉइंट है वो हमारा खत्म होता है। और कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर को आप रूल क्या याद रखोगे, पैरेलल वाला रूल याद रखना है आपको। हाँ, पैरेलल रूल मतलब क्या याद रखना है, जिसको ऑफर की है उसको ऑफर कम्युनिकेट हो गई, ऑफर विल बी सेट टू बी कंप्लीटेड। ऑफर क्या हो गई बोलो वहां पे कंप्लीट हो गई। अब हमें अगला पॉइंट क्या डिस्कस करना है बोलो, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस डिस्कस करना है। ओके, नाउ देयर आर टू इश्यूज फॉर डिस्कसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। हाँ, दो पॉइंट है यहाँ पे। दो पॉइंट क्या देखो, द मोड्स ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, हाँ, एंड व्हेन एक्सेप्टेंस इज द कंप्लीटेड। इन ऑल कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के अंदर हम दो पॉइंट डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पॉइंट डिस्कस करेंगे है वो कैसे एक्सेप्टेंस देना है, मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस। हाँ, एंड दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज सेड टू बी कंप्लीटेड। ओके, अब फर्स्ट पॉइंट क्या करते हैं हम लोग, देखो मोड्स ऑफ द एक्सेप्टेंस क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आप अंडरलाइन कैसे करोगे, देखो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस को अंडरलाइन करो, मतलब ये हमारा पॉइंट हो जाएगा मेन हेडिंग। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में आप क्या करो, मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस हेडिंग दो। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में आप हेडिंग क्या दो, मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस। हाँ, एंड मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस में फिर आप 1 by 1 लिखना शुरू कर दो। उसको क्या करो, यहाँ पे स्मॉल a डाल दो, कम्युनिकेशन बाय द एक्ट। हाँ, नंबर 1 पॉइंट क्या सकते हो, देखो कम्युनिकेशन बाय द एक्ट। हाँ, देखो फिर इसके अंदर डिटेल में जाना है हमें। कम्युनिकेशन बाय द एक्ट वुड इंक्लूड द एक्सप्रेशन ऑफ द वर्ड्स वेदर रिटन और ओरल। कम्युनिकेशन बाय एक्ट में क्या होगा बोलो, वहां पे आप वर्ड्स यूज करोगे। वर्ड्स कैसे होंगे, आइदर रिटन वर्ड्स होंगे या ओरल वर्ड्स होंगे। Yes, I would like to purchase your car. You are telling me face to face, or another option may be there. You can send me the email. Yes, ma'am, I would like to purchase your car. Okay. Written words कौन-कौन से मेथड से भेजे जा सकते हैं आप सबको पता है, लेटर, टेलीग्राम, फैक्स, ईमेल, एडवर्टाइजमेंट, ये सारे क्या हो सकते हैं, मेथड ऑफ द रिटन। हाँ, वर्ड्स हो सकते हैं। एंड ओरल वर्ड कैसे हो सकते हैं, देखो या तो फेस टू फेस है हम लोग, या फिर क्या हो सकता है ओरल में, ओरल वर्ड्स विल इंक्लूड द टेलीफोन मैसेजेस। ओरल वर्ड्स में क्या हो सकता है, वहां पे टेलीफोन मैसेजेस हो सकते हैं। हाँ, नाउ अगेन कम्युनिकेशन वुड इंक्लूड द कंडक्ट intended to communicate like positive act or a sign so that the other person understand what the person acting or making sign means to say। जैसे I can say using my neck, yes I am ready। कुछ बोल नहीं रही हूँ, just I'm giving the indication of the yes, हाँ, or I'm saying no, that means I'm just giving the signs that I want or I don't want। वो वाले signs मैं आपको क्या कर रही हूँ यहाँ पे indicate कर रही हूँ। हाँ,
ओके, सो गॉट द पॉइंट। आपको क्या करना है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हेडिंग देना है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के हेडिंग में आपको क्या करना है, नेक्स्ट हेडिंग होगा मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस। हाँ, मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस में हम लोग क्या करेंगे बोलो, फर्स्ट पॉइंट करेंगे कम्युनिकेशन बाय द एक्ट। कम्युनिकेशन बाय एक्ट में क्या होगा आपको, कम्युनिकेशन बाय एक्ट इंक्लूड एनी एक्सप्रेशन ऑफ द वर्ड्स, वेदर रिटन या ओरल। रिटन या ओरल वर्ड्स के थ्रू क्या किया जा सकता है, वो कम्युनिकेशन किया जा सकता है। हाँ, अगेन, हाँ, communication would include any conduct, communication would include any conduct, हाँ, like acts or signs। बस इतना हमें क्या करना है, याद रखना है। communication by the act include any expression of the words whether oral or written, ठीक है। एंड फिर लाइन क्या होगा वहां पे, अगेन यहाँ पे आ जाएंगे, communication would include any conduct intending to communicate like act or a signs। इतना ही मटेरियल क्या करना है हमें लेना, ओके। देन यू आर गोइंग टू मेक अ बी पॉइंट, ओके। कभी कभी किसी चीज को करने से मना करके भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हाँ, ओमिशन टू डू समथिंग, ओके। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन। ओमिशन मतलब ध्यान में आ रहा है ना, बताया था आपको, ना करना, ओके, नॉट टू डू। देखो अभी वो ओमिशन किसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, सच ओमिशन इज कन्वेड बाय अ कंडक्ट और फॉरबियरेंस। बस इतने अंडरलाइन करो, सच ओमिशन इज कन्वेड बाय कंडक्ट और फॉरबियरेंस। आपको जो चीज नहीं करनी है वो चीज आप कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो, आपके कंडक्ट से या फॉरबियरेंस से आप कंडक्ट कर सकते हो या कन्वे कर सकते हो, ओके। फिर इसको हम एक एग्जांपल लेते ताकि आपको पॉइंट क्लियर हो जाए। हाँ, ए ऑफर्स ₹50,000 टू द बी if he does not arrive before the court of law as an evidence in the case, okay। अगर उस पर्टिकुलर केस में एज एविडेंस वो नहीं आता है तो उसको 50,000 रुपए देने के लिए एग्री करता है। बी डज नॉट अराइव ऑन द डेट ऑफ हियरिंग, वो नहीं आया, मतलब उसने अपना एक्सेप्टेंस दे दिया, क्योंकि ऑफर किस चीज के लिए थी बोलो, उस दिन कोर्ट में हाजिर ना रहने के लिए उसको 50,000 रुपए दे रहा है। वो कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ, इसका मतलब उसने ओमिशन से अपना एक्सेप्टेंस क्या कर दिया बोलो, वहां पे कम्युनिकेट कर दिया। हाँ, बट ना थोड़ा सा आपको एक अंदर जाके पॉइंट बताती हूँ, ये ऑफर ही बेसिकली वैलिड नहीं है, ठीक है। अभी के लिए आप इसको कुछ मत करो, बट आपके ओन नॉलेज के लिए याद रखो, ऐसे एविडेंस को हम ना दबा सकते, ना पैसे देके एविडेंस को कोर्ट में ला सकते हैं ऑन पेपर। हाँ, ये ऐसी पर्टिकुलर चीज करना मतलब इलीगल है कि आप एविडेंस को कोर्ट में आने के लिए पैसे दे रहे हो या आप विटनेस को कोर्ट में ना आने के लिए पैसे दे रहे हो, ऐसे नहीं हो सकता। विटनेस खुद डिसाइड करेगा कि उसको कोर्ट में आना है या नहीं आना है, बाय द वे, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय द ओमिशन टू डू समथिंग हमारा क्या हो गया बोलो, पॉइंट नंबर 2 हो गया। हाँ, नाउ आगे देखो क्या गया, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय द कंडक्ट। फिर आ जाता है हमारा वो मेन पॉइंट, ओके। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय द क्या हो जाएगा, कंडक्ट। कंडक्ट याद है ना आप सबको, कोई पर्टिकुलर एक्ट को करके कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस क्या किया जा सकता है, दिया जा सकता है, ओके। फॉर इंस्टेंस डिलीवरी ऑफ अ गुड्स एट अ प्राइस बाय द सेलर टू अ विलिंग बायर will be understood as a communication by conduct। इतने हाँ, टू कन्वे द एक्सेप्टेंस। मैंने आपको बताया था, अपनी शॉप में आपने मुझे ये बोला कि 10 bags ऑफ द राइस भेज देना। हाँ, और मैंने आपको वो 10 bags ऑफ द राइस, मैंने हाँ नहीं बोला, हाँ, लेकिन डायरेक्टली 10 bags ऑफ द राइस आपके घर में भेज दिया, मतलब मैंने कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस क्या कर दिया बोलो, बाय कंडक्ट कर दिया, ठीक है। सो फॉर इंस्टेंस डिलीवरी ऑफ द गुड्स एट अ प्राइस बाय सेलर to a willing buyer will be understood as a communication by the conduct to convey the acceptance। हाँ, यहाँ आगे एग्जांपल जो आ रहा है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। हाँ, वेजिंग मशीन बस स्टैंड पे रखा हुआ है, उसके अंदर आप रुपी डालते हो तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट है। हाँ, आप एक पब्लिक बस जो फिक्स रूट पे चलती है उसमें चढ़ते हो, बस का रुकना मतलब इम्प्लाइड ऑफर है, बस के अंदर आपका चढ़ना मतलब इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है वहां पे, ओके। Similarly, one need not to explain why the board a bus or drop a coin in the waging machine, okay. The first act is the conduct of acceptance against the communication to the offer by a public transport authority to carry a passenger। बस चलाते मतलब ऑफर है कि वो पैसेंजर को कैरी करना चाहता है। हाँ, और मशीन रखते मतलब ऑफर है कि और मशीन में रुपी डाल दो। सेकेंड एक्ट इज अगेन कंडक्ट कन्वेइंग द एक्सेप्टेंस टू यूज द वेजिंग मशीन kept by the vending company as an offer to render the service for a consideration, okay। लेकिन इसमें मार्किंग कितना करो, बस पहले के 2 लाइन इनफ है। हाँ, for instance delivery of a goods at a price by selling by seller to willing buyer will be understood as a communication by conduct to convey the acceptance। हाँ, similarly क्या जगह देखो वहां पे,
पब्लिक बस, हाँ, और ड्रॉप अ कॉइन इन वेजिंग मशीन। ये और एग्जांपल दो, बस क्या करो वहां पे अंडरलाइन करके रखा। हाँ, वन बोर्ड अ पब्लिक बस, अनदर एग्जांपल ड्रॉप अ कॉइन इन अ वेजिंग मशीन, अनदर एग्जांपल, दैट्स इट। इतना ही वहां पे क्या करो अंडरलाइन करो, उसके बाद के वो जो 2-3 लाइन है उसको लेने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, द अदर इशू इन द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज द इफेक्ट ऑफ दैट or omission or a conduct. Huh? There is an indirect effort must result in effectively communicating its acceptance or non-acceptance. Huh? It has no such effect. There is no communication regardless of the acceptor think about the offer being himself accepted. देखो वो communication effectively communicate होगा तो ही acceptance होगा। एक्सेप्टर को लग रहा है कि उसने एक्सेप्टेंस दिया, ऐसे लगने से एक्सेप्टेंस नहीं होता है। हाँ, thus a mere mental unilateral assent in one's own mind would not amount to the communication. हाँ, आपके खुद के माइंड में आपको लग रहा है कि आपने कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कर दिया, उससे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं होगा। Where a resolution passed by a bank to sell a land to the A remain uncommunicated to the A. हाँ, it was held that there was no communication and hence no contract. इसका best of example is Central Bank Yavatmal versus Venkatesh. What happened in this particular case? हाँ, बैंक ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मीटिंग में एक रेजोल्यूशन रखा एंड रेजोल्यूशन पास कर लिया कि वो अपनी एक लैंड ए को सेल करना चाहते हैं, बट ये फैक्ट उन्होंने ए को कम्युनिकेट ही नहीं किया। हाँ, तो वहां पे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हुआ क्या? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है। हाँ, ओके, देखो क्या गया आगे, हमें क्या इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अंडरलाइन करना है। देखो एफर्ट्स मस्ट रिजल्ट इन इफेक्टिवली कम्युनिकेटिंग इट्स एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस। अगर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट करना है तो वो कम्युनिकेशन अच्छे से होना जरूरी है। हाँ, तो यहाँ पे क्या करो आप, वहां पे एफर्ट्स मस्ट रिजल्ट इन इफेक्टिवली कम्युनिकेटेड इट्स एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस। हाँ, डायरेक्टली आप क्या करो वहां पे पॉइंट नंबर 3 पे, लाइन नंबर 3 पे आ जाओ। मियर मेंटल यूनिलैटरल असेंट, हाँ, इन वंस ओन माइंड वुड नॉट अमाउंट टू कम्युनिकेशन। ओके, आप अपने माइंड में ओनली सोचते हो तो वो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं होगा। एंड केस तो ऑफ कोर्स सबको अंडरलाइन करके ही रखनी है। सेंट्रल बैंक यवतमाल वर्सेस क्या होगी हमारी केस? वेंकटेश। देन let us now come to the issue when communication of acceptance is complete. Okay, अब हमें क्या करना है पता है? वो ऊपर का मटेरियल हो गया आपका कम्युनिकेशन मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस। हाँ, मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस में क्या क्या कर लिया हमने? नंबर 1 ए कम्युनिकेशन बाय एक्ट, हाँ, नंबर 2 बी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन टू डू समथिंग, नंबर सी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट आ गया। हाँ, अब आप क्या करोगे? देखो यहाँ पे हमें करना है हमारा फ्रेश पॉइंट। हाँ, when communication of acceptance is complete, ये आप यहाँ पे क्या करो अंडरलाइन ही करके रखो। when communication of acceptance is complete, communication of acceptance कब complete होगा? देखो सेक्शन 4 बताता है communication of acceptance कब complete होगा। if you remember yesterday what we discussed, हाँ, इसके लिए कौन सा रूल याद रखना है आपको? याद है सबको? इसके लिए हमें रूल याद रखना है क्रॉस, क्रॉस रूल। इसके लिए हमें क्या करना है? याद रखना है। हाँ, एक्सेप्टर ने जैसे ही अपना एक्सेप्टेंस पोस्ट में डाल दिया, एक्सेप्टर ने जैसे ही अपना एक्सेप्टेंस पोस्ट में डाल दिया, वो ऑफरर के अगेंस्ट क्या हो गया? बोलो कंप्लीट हो गया। हाँ, और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जैसे ही ऑफरर को पहुंच गया, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जैसे ही ऑफरर को पहुंच गया, वैसे ही क्या हो जाएगा? बोलो वहां पे एक्सेप्टेंस जो है वो एक्सेप्टेंस किसके अगेंस्ट कंप्लीट हो जाएगा? एक्सेप्टर के अगेंस्ट कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, so you have to remember a cross way about the communication of acceptance when complete. ठीक है, लेट्स चेक आउट। देखो क्या है, इसको हम लोग क्या करते हैं? हाँ, मॉडल लैंग्वेज में थोड़ा डिस्कस करते हैं। हाँ, लेट अस नाउ कम टू द इशू व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। एज अगेंस्ट द प्रपोजर कब कंप्लीट होगा? देखो एज अगेंस्ट द प्रपोजर, हाँ, जैसे ही एक्सेप्टर उसको, हाँ, क्या करेगा? वहां पे ट्रांसमिशन में डाल देगा, मतलब पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन कर देगा। हाँ, एक बार एक्सेप्टर ने एक्सेप्टेंस पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन कर दिया तो एक्सेप्टेंस वापस लेना पॉसिबल है क्या? एक बार लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आपने पोस्ट में डाल दिया तो हाथ डाल के उसको वापस लिया जा सकता है क्या? नहीं। एक बार आपने ईमेल का बटन दबा दिया सेंड,
तो उसको कैंसिल किया जा सकता है क्या वहां पे? नहीं। एक बार आपने फैक्स सेंड कर दिया तो वापस लिया जा सकता है क्या? नहीं। हाँ, सो when the communication of the acceptance is said to be completed against the proposer, proposer के against कब होगा? देखो, when it is put into the course of a transmission, हाँ, to him so as to be out of the power of the acceptor to withdraw the same. हाँ, एक बार एक्सेप्टर ने उसको पुट इनटू द कोर्स ऑफ अ ट्रांसमिशन कर दिया तो अब एक्सेप्टर उसको पीछे नहीं ले सकता ना। तो अगेन व्हेन एक्सेप्टर पुट इनटू द कोर्स ऑफ अ ट्रांसमिशन, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस विल बी सेड टू बी कंप्लीटेड अगेंस्ट द ऑफरर। हाँ, एंड जैसे ही ऑफरर को वो मिल गया, हाँ, communication of acceptance will be said to be completed against the acceptor. Okay, cross. As against the acceptor, simple है, जब वो acceptance letter come into the knowledge of the proposer. Okay, against the acceptor when it comes to the knowledge of the proposer. acceptor ने डाल दिया, proposer के against complete हो गया, और proposer को मिल गया when it comes to the knowledge of the proposer, acceptor के against क्या हो गया? वहां पे complete हो गया। और सेम दोनों पॉइंट अगर पोस्ट से भेजा है तो लैंग्वेज क्या यूज करनी है? लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेस मटेरियल यूज करना है हमें। हाँ, where the proposal is accepted by the letter sent by the post. हाँ, ये भी हमें कवर करना है। The communication of acceptance will complete as against the proposer. हाँ, when the letter of acceptance is posted and as against the acceptor when letter reaches to the proposer. communication of acceptance अगर पोस्ट से किया है तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जैसे ही पोस्ट किया तो वो किसके अगेंस्ट कंप्लीट हो गया? बोलो, वो कंप्लीट हो गया ऑफरर के अगेंस्ट, प्रपोजर के अगेंस्ट। हाँ, एंड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्रपोजर को मिल गया तो वो किसके अगेंस्ट कंप्लीट हो गया? बोलो, एक्सेप्टर के अगेंस्ट वहां पे कंप्लीट हो गया। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो, जो हमने ऊपर वाला एग्जाम्पल देखा था जिसमें हमने 2 डेट्स देखे हुए थे। हाँ, इन द अबव एग्जाम्पल बी एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ ए, हाँ, and sends the acceptance by the post on 14th. Okay, then communication of acceptance against the A will be completed on the 14th. याद है हमने ऊपर क्या एग्जांपल देखा था? A ने B को लेटर भेजा है कि आप मेरा घर खरीदोगे क्या? लेटर ऑफ ऑफर भेजा था 10th को, B को मिला था 12th को। B ने 2 दिन सोचा कि उसको घर लेना है या नहीं लेना है, व्हाटएवर, एंड 14th को उसने डिसीजन ले लिया कि हाँ उसको घर क्या करना है? खरीदना है। तो उसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस B ने, मतलब एक्सेप्टर ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कब किया? देखो 14th को, एंड अब वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो क्या हो गया? देखो, नाउ एज प्रपोजल एक्सेप्ट किया बी ने एंड सेंड द एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट ऑन द 14th। तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द ए कब कंप्लीट होगा? 14th को। हाँ, इज अ कंप्लीटेड against A on 14th, that is when the letter is posted. Okay, as against the B, acceptance will complete when the letter reaches to the A, और B के against कब complete होगा? देखो, जब वो लेटर A को क्या हो जाएगा? वहां पे रीच हो जाएगा। हाँ, so simple है। Here A, the proposer will be bound by the B's acceptance even if the letter of acceptance is delayed in the post or lost in the transit. हाँ, अब ये ना जो रूल है पोस्ट वाला वो हम लोग 2 मिनट के बाद नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपको ध्यान में गया कि देखो, communication of acceptance will be said to be completed against the proposer when acceptor put into the course of transmission. And communication of acceptance complete against the acceptor when the letter of acceptance reaches to the proposer. Okay, that is the point you have to remember. और अगर पोस्ट में कुछ डिले वगैरह होता तो क्या होगा वो हम नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे? यहाँ पर डिस्कस करेंगे।